Hello students, welcome again on my YouTube channel. This is Amit sir, your accountancy teacher. I hope you all are working hard at home. Now to this video, I am going to start bank reconciliation statement. But before I start, I'll suggest you all to please like and subscribe my channel. Now, first we should know the meaning of BRS. It means a statement prepared by business entity for reconciling matching bank balance as per cash book with the bank balance as per passbook and to find out the causes of difference between these two balance. हमें क्या करना है, जो कैश बुक जो बिजनेसमैन खुद बना रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है और जो बैंक का बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको सर्च करना है. एंड विद द हेल्प ऑफ BRS वी विल मैच दैम. हम उन्हें मैच करेंगे. नाउ first we should know the meaning of cash book and passbook. Cash book means the book which is prepared by business entity itself. It means ये businessman खुद बनाता है. And whenever they are asking us to compute balance as per cash book, we will start thinking according to business entity. जो भी mistake उसने किया होगा हम करेंगे, जो भी उसने plus किया होगा हम करेंगे. And on the other side, passbook is prepared by bank, and bank will treat business entity as its customer. And we will start thinking according to bank whenever balance as per passbook is required. Now, one thing you should remember that BRS, or we can say bank reconciliation statement, is not a part of financial accounting system. It means ये financial statement का part नहीं है. ये tool है control करने का बैंक से related transaction को. As you know, cash and bank both are pretty sensitive items, and for controlling them in a proper manner we need some tools, and BRS is known as one of such tool. It is prepared on a particular date, and we will use cash book and passbook both for its preparation. And one more thing you should remember, that preparation of BRS is not mandatory. तब मैंने बोला ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, बट इट हेल्प्स अस इन कंट्रोलिंग द वेरियस एक्टिविटीज related to business organization. Now, question arises why preparation of BRS is important. BRS helps us in calculating. Say, as I told you, it is a controlling tool. अगर ये controlling tool है तो ये आपको गलती ढूंढने में हेल्प करता है, जो कि कैश बुक या पासबुक दोनों में से किसी भी जगह हो सकती है. Now, it will also helps you in detecting undue delay by bank. Sometimes some transactions are there which are recorded by you, but बैंक को उन्हें रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है. लाइक चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. सेकंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. इन सच केस आपको उन ट्रांजैक्शन को ढूंढने में हेल्प करेगा. इट डिस्करेजेस मैनिपुलेशन बाय अकाउंटेंट. कभी कभार अकाउंटेंट जो होते हैं अपने अकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर देते हैं. ये उन गलतियों को भी ढूंढने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि बैंक ने डिले किया, तो आपको ये दिखाना में हेल्प करेगा कि भैया आपका बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस इन्हीं ट्रांजैक्शन की वजह से मैच नहीं हो रहा. नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट एक्चुअल पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस. इट हेल्प्स अस यू इन असेसिंग द एक्चुअल करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज ये कंट्रोलिंग टूल है जो ऑथेंटिसिटी जज करने में हेल्प करता है. नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई डिफरेंस इज देयर बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक for a same person or same account. Say one major difference is due to time difference. हमने चेक डिपॉजिट किया, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा चेक उसी टाइम क्रेडिट हो गया, पर बैंक को उस चेक को क्रेडिट करने में कुछ टाइम लगता है. लाइक अ चेक इज डिपॉजिटेड बाय यू ऑन 28th of March, एंड बाय 31st March वो चेक अभी तक बैंक ने ऐड नहीं किया, तो बैंक की तरफ से क्या है, माइनस, और हमारी तरफ से क्या है, प्लस. Therefore, it will create a difference between cash book bank balance and passbook bank balance. One more difference is due to error in cash book. Sometimes, due to manual work in cash book, some error may occur. Like डेबिट साइड पे wrongly किसी चीज को रिकॉर्ड कर दिया, या क्रेडिट साइड पे किसी चीज को रिकॉर्ड कर दिया. Like बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड twice in कैश बुक. इट मीन्स हमने 2 बार माइनस कर दिया और बैंक ने सिर्फ 1 बार माइनस किया है. Such reasons और such mistakes will also create difference between cash book bank balance and passbook bank balance. Now, next difference is due to
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और क्रेडिटेड बाय बैंक। आपने चेक डिपॉजिट किया, वेन एवर यू डिपॉजिट चेक, आप उसे कैश बुक के डेबिट साइड पे लिख देते हैं विद द नेम ऑफ गिवर या टू चेक इन हैंड। इट मीन्स आप मानते हैं कि उसी दिन वो चेक आपके अकाउंट में प्लस हो गया, आपकी तरफ से तो वो प्लस हो गया, पर बैंक को उस चेक को कलेक्ट करने में 2 to 3 days का टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर क्रिएटिंग BRS फॉर 31st मार्च। आपने 28 मार्च को एक पार्टी से चेक रिसीव किया और उस चेक को क्रेडिट होना है 2 अप्रैल से। तो इट मीन्स 31st मार्च तक आपकी तरफ से वो प्लस है और बैंक की तरफ से माइनस। इट विल क्रिएट डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। One more reason is there, that is check issued but not presented for payment. When you issue check, what you will assume? जब आप चेक इशू करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपका पैसा क्या हो गया, माइनस, और बैंक ने उस चेक को क्या कर रखा है, प्लस, क्योंकि बैंक के पास तो अभी वो चेक पहुंचा ही नहीं है। अगर पहुंचा भी, वो भी डेट के बाद पहुंचा, तो उसका मतलब है कि बैंक ने अभी तक वो अमाउंट आपके अकाउंट में प्लस कर रखा है। दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. And there are some other transaction जो बैंक को पहले पता लगती हैं और उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। For such transaction like bank charges charged by bank, interest debited by bank, interest credited by bank or any other credit given or debit charged by bank will be known to bank directly. It means वो बैंक को तो पता है और बैंक ने उस चीज को प्लस और माइनस दोनों कर दिया है, हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इट विल ऑल्सो क्रिएट डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। एंड देयर इज वन मोर रीजन, दैट इज डायरेक्ट पेमेंट पेड और रिसीव्ड बाय बैंक। लाइक इफ एनी अकाउंट होल्डर गिव्स डायरेक्शन टू इट्स बैंक दैट ऑन ड्यू डेट, बैंक ऑटोमेटिकली उसकी पॉलिसी, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट कर देगा, तो बैंक क्या कर देगा, वो अमाउंट माइनस कर देगा। When we order bank to make payment directly from our account, बैंक ने तो माइनस कर दिया और हमें पता नहीं है, हमने प्लस कर रखा है। It will also create difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. This type of order is known as standing advice. Now next, transaction not recorded or twice recorded in cash book. कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होती हैं जो मिस्टेक नहीं है, ओमिशन की वजह से रिकॉर्ड होना भूल गई, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो 2 बार रिकॉर्ड हो गई। दोस ट्रांजैक्शन विल ऑल्सो क्रिएट डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ एरर इज देयर, दैट इज नोन एज क्लरिकल मिस्टेक, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग। सच टाइप ऑफ mistakes can also create difference between your cash book bank balance and passbook bank balance. Now, after knowing meaning of BRS and causes of difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook, now we should know how we will make BRS. The format for making BRS is, first column is for serial number, second for particular, next 2 column represents plus and minus item. First we have to write balance as per cash book or passbook. If balance as per cash book is given, it means they are asking us to make computation of balance as per passbook. And in such situation, we will start thinking according to bank only. And we will write transactions one by one, which will create difference. And we will start thinking according to bank. अगर बैंक के हिसाब से कुछ प्लस होना चाहिए तो वो प्लस होगा, और बैंक के हिसाब से कुछ माइनस होना चाहिए तो माइनस होगा। दिस प्रोसेस विल बी डन व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, दैट मे बी ओवरड्राफ्ट और पॉजिटिव बैलेंस। अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो स्टार्टिंग का अमाउंट जो बैलेंस होगा वो नेगेटिव में आएगा, बाकी थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। और वाइस वर्सा विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ पासबुक। इट मीन्स अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है और आपको बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे, और वी कैन से वी विल स्टार्ट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी। जो भी मिस्टेक उसने किया होगा वो हम करेंगे, और जो भी बैंक ने किया होगा उसका रिवर्स किया जाएगा। नाउ दैट्स इट एंड गुड बाय। In our next class, we will do some practical problems related to VRS. For the time being, thank you.